بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ہادی سے آپ مختلف مقامات کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو حج عمرہ کی مکمل گائیڈ اور حج عمرہ کے متعلق مکہ اور مدینہ کے احکامات کے متعلق آج ایک خطبہ جمعہ آپ کو پیش کریں گے، وہ آپ مکمل سنیے گا۔ جو دوست احباب حج پہ جا چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جانے والے ہیں ان کے لیے بالخصوص، اور جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں جاتے وہ بھی ضرور یہ خطبہ جمعہ سنیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیانات ہیں، ارشادات ہیں، وہ سارے الحمدللہ اس میں موجود ہیں۔ ایمان کو تازہ کر دینے والا یہ پروگرام، یہ خطبہ جمعہ ہر دوست احباب جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ ضرور سنیں۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے کے پیسوں سے اگر ہم کسی کا غریب کا چولہا جلا دیں یا کوئی اور عمل کر دیں، کوئی اور عمل کر رہے ہیں لیکن وہ خود وہ حج پہ نہیں جاتے، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ خطبہ جمعہ ضرور سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیں آئیں چلتے ہیں خطبہ جمعہ کی طرف۔ حافظ عبدالرؤف صاحب۔ قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کے نصیب میں حج کو کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، سب احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کی جانب جائیں، بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، حجر اسود کو چومیں، ملتزم کے ساتھ اپنا سینہ لگائیں، اپنا چہرہ لگائیں، رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں، مطاف میں نمازیں پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کریں، مینا میں جائیں، عرفات میں جائیں، نامرہ کی مسجد کے اندر خطبہ سنیں، مزدلفہ کے اندر رات گزاریں، کبھی جمرات کو کنکریاں ماریں، کبھی قربانی کریں۔ یہ مناظر اللہ تعالیٰ سب کے مقدر میں کرتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سارے مرحلوں سے گزار دیتا ہے۔ اور اس کے لیے پیسے ہونا ضروری نہیں ہے، نیت ہونا ضروری ہے، اللہ سے توفیق مانگنا ضروری ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے وہ چلا جاتا ہے، وہاں کوئی خود نہیں جاتا، جتنے بھی جاتے ہیں بلائے جاتے ہیں۔ جن کی حاضری آسمان پہ منظور ہو جاتی ہے، زمین پہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بھکاری، یہ لفافے بیچنے والے، مزدوری کرنے والے، بیوہ عورتیں، ریڑیاں لگانے والے، ان سے پوچھو آپ کس طرح حج میں آ گئے؟ کہتا بس اللہ کو منظور اس طرح ہی تھا۔ اور کروڑوں اربوں پتی، پلازوں اور فیکٹریوں کے مالک، زندگی گزر جاتی اور حج نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ جس کا گھر ہے اگر وہی نہیں بلائے گا تو کوئی کس طرح جائے گا؟ جس کا گھر ہے، جس کو اس نے بلانا ہے اسی نے جانا ہے، ورنہ لوگ سعودی عرب میں پیدا ہو کے حج نہیں کر سکتے، اور کرنے والے افریقہ سے آ کے کرتے ہیں، انڈونیشیا سے آ کے کرتے ہیں، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان سے کرتے ہیں، امریکہ، فرانس، یورپ کے مسلمان آ کے کرتے ہیں۔ نہ کریں تو عرب میں پیدا ہونے والے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم رش نہیں دیکھ سکتے۔ رش اور گھبراہٹ نہیں ہے، اللہ کی توفیق چھینی ہوئی ہے۔ ہمارے ملکوں میں گھر اچھے سے اچھا بنا لیں گے، عورتیں سونے پہ سونا جمع کر لیں گی، گاڑیاں ہر سال بدلیں گے، پلاٹ جہاں ملے اسی جگہ خرید لیں گے،
और जब हज की बात आए, अभी थोड़े हालात तंग है ना, अभी फुर्सत नहीं है, अभी मैं फारिग नहीं हुआ फरीजों से, क्योंकि वो हज को फरीजा नहीं मानता। वो बेटी की शादी को फर्ज कहता और हज को फर्ज कहता। मैं फर्ज से फारिग हो लूं फिर हज करूंगा, क्योंकि वो हज को फर्ज नहीं मानता। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। मुसलमानों, ये इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है, और इतना आसान रुकन है कि एक दफा अदा कर ले हमेशा के लिए अदा हो जाता है। रमजान के रोजे हर साल रखने हैं, ज़कात वाले ने हर साल देनी है, नमाज बंदे ने हर रोज पढ़नी है, ईमान एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ सकता, हज सिर्फ एक दफा करना है, जिंदगी भर के लिए ये फर्ज साबित हो जाएगा। जिसने हज कर लिया उसके बाकी रुकन कितने रह गए? 4। सबके 5 हैं, और जिसने हज कर लिया उसके बाकी कितने बच गए? 4। एक उसका पूरा हो गया, एक सवाल उसका क्लियर हो गया। और कई लोग, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, तौफीक मांगनी चाहिए। वलिल्लाहि लिन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ताला का हक है कि जिसको इस्तिताअत मिले, उसको सफर का अमन मिले, उसको वसाइल हो, वो क्या करे? हज अदा करे। ये अल्लाह का हक है मामूली, वलिल्लाह, ये अल्लाह का हक है अलम नास, लोगों पे। मन इस्तता, जिसको इस्तिताअत है, जिसका रास्ता आसान है, वो हज करे। वमन कफरा, जो हज नहीं करता, इनकार नहीं करता, उसके पास वसाइल भी हैं, अमन भी है, हालात भी हैं, वमन कफरा, नहीं मानता, फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला जहानों से गनी है, बेपरवाह है, उसे किसी की परवाह नहीं। तुमने हज अपने लिए करना है, अल्लाह के लिए नहीं करना। दुनिया में पैसे लगाई जाएंगे, दुनिया की चीजें बनाई जाएंगे, हज का वक्त आ जाए महंगाई नजर आएगी। गाड़ी खरीदते महंगाई नहीं नजर आती, कोठी प्लाट खरीदते महंगाई नजर नहीं आती। जब महंगाई का मसला बनेगा, हज का, उम्रे का, कुर्बानी का, बाकी भी तो महंगाई, बच्चे की शादी करेंगे उसी तरह की करेंगे, बच्चों को तालीम दिलाएंगे उसी तरह के दिलाएंगे, घर की रोटी, किचन, उसमें फर्क नहीं आएगा। जब फर्क आना, महंगाई का सारा जोर हज पे, अल्लाह की इबादत पे निकलेगा। नेकी करने का वक्त आ जाए, हज करने से बेहतर है किसी की मदद कर दी जाए, हज से बेहतर है किसी यतीम की बेटी की शादी कर दी जाए, हज से बेहतर है लोगों के काम आया जाए। अल्लाह के बंदो, हज और इबादत है, लोगों के काम आना और इबादत है, एक दूसरे का मुतबादिल नहीं है। हज अलग है, यतीम की कफालत अलग है, इसको एक दूसरे से जोड़े ना। अच्छा, ये जो कहते हैं ना मस्जिद के कालीन बिछाने से बेहतर है कि आप किसी बेटी के सर पे चादर रख दें। खुद 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे होते हैं, लाखों का मोबाइल होता है, करोड़ों का घर होता है, और भाषण दे रहे होते हैं कि मस्जिद के कालीन से बेहतर क्या है? किसी के सर के ऊपर आप चादर रख दें, आप अपने घर के पर्दों की बजाय किसी को पर्दा करा दें। जिसको तकलीफ होगी मस्जिद की होगी, जिसको तकलीफ होगी हज की होगी, जिसको तकलीफ होगी कुर्बानी की होगी। कई उठेंगे, अभी कुर्बानी आने वाली, और जी इतना पैसा कुर्बानियों पे लग जाता है, इतनी जानें कुर्बानियों पे चली जाती हैं, ये कौन सा फर्ज है? बेहतर है कि इससे गरीबों की मदद कर दी जाए। अल्लाह के बंदो, तुम क्या जानो ये कुर्बानी गरीबों की कितनी बड़ी मदद है। कई लोग सिर्फ कुर्बानी के मौके पे गोश्त खाते हैं, पूरा साल वो खरीद के गोश्त खा ही नहीं सकते। उनको कोई भेजता है तो पकाते हैं, वो जेब से पका नहीं सकते। ये फलसफे हैं महज। तो अल्लाह ताला कहता है मन कफरा, ये जो हुज्जतें करते हैं, जो इनकार करते हैं, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गनीयुन,
लापरवाह है, बेपरवाह है, अनिल आलमीन, तुम्हारी सारी चीजों से, सारे जहानों से। हज हमने कहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है। इस्लाम की इमारत, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के सुतून 5 चीजें। पहला क्या? कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पहली बात है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये पहली बात है। नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और इस्तिताअत वाला हज करे और रमजान के रोजे। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद है। 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह ताला तौफीक दे हम नमाज में भी आए, ज़कात में भी आए, हज में भी जाएं, रोजों में भी हमारा अकीदा ईमान भी ठीक हो। मैं कहता हूं ये जो 5 चीजें पूरी कर लेता है ना, इस्लाम उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ना उसकी नमाज में सुस्ती है, ना उसके अकीदे में हेरा फेरी है, ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी की बात को तरजीह देता है। हज के लिए तैयार है, ज़कात के लिए तैयार है, रमजान के रोज़ों के लिए तैयार है। वो कहीं पीछे नहीं हटता। जिसको 5 चीजों की समझ आ गई, उसको बुनियादी इस्लाम सारा ही मिल गया, उसको इस्लाम की बुनियादें मिल गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, आप खुतबा दे रहे थे, आपने फरमाया अल्लाह ताला ने हज फर्ज करार दिया है, हज करो, ये फर्ज है तुम्हारे ऊपर, इसको अदा करो। एक बंदा दरमियान में बोल पड़ा, क्या हर साल अदा करें? सहाबा इकराम तो ये भी राजी थे कि हर साल अदा करें। आप खामोश रहे। वो फिर उसने खामोशी देखी, फिर बोल पड़ा। हत्ता कि कितनी दफा बोला? 3 दफा कहने लगा, क्या हर साल अदा करें? आपने फरमाया, अगर मैं हां कह देता और तुम पे ये फर्ज हो जाता हर साल और तुम ये कर ना सकते। दीन बड़ा आसान बना के गए हैं, हमें बड़ी आसानियां दे के गए। क्या फरमाते हैं, अगर मैं हां कह देता, अगर मैं हां कह देता तो तुम पे ये हर साल फर्ज हो जाता और तुम इसको निभा ना सकते। इसलिए जब मैं कोई बात करना छोड़ दूं तो तुम सवाल ना किया करो। तुमसे पहली कौमें हलाक हो गई कसरत सवाल की वजह से और नबियों से इख्तलाफ की वजह से। एक तो उन्होंने अंबिया की मुखालफत की, एक सवाल बड़े करते थे। ये सूरतुल बकरा है, बकरा का मानी गाय है। इसमें एक गाय का तज़किरा है। बनी इस्राइल के लोग गाय के सवाल करते गए और फंसते गए। उसकी उम्र क्या हो, उसका रंग क्या हो, उसकी ये खूबी कैसे हो। जितने सवाल करते गए उतनी मुश्किलात आती गई। अगर सीधी सीधी कुर्बानी कर देते, गाय को ज़िबा करते, आसान होता। जितने सवाल किए उतनी मुश्किल हो गई। तो आपने फरमाया तुमसे पहली कौमें हलाक हो गई कसरत सवाल की वजह से। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, उलमा इकराम से सवाल करें, अमल वाला, बहस वाला नहीं। एक बंदा कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम क्या है? मैं कहता हूं कब्र से पूछा है ना। तेरी कब्र का सवाल है, तेरे क़यामत का सवाल है, तेरी नमाज का हिस्सा है, तू बता इसके तूने लेना क्या? कहता आप बड़े आलिम होंगे, फलाना बड़ा आलिम। मैंने कईयों से पूछा, उनको मूसा अलैहिस्सलाम का अम्मी का नाम नहीं आता। तो मैंने कहा, अगर हदीस में नहीं लिखा, अगर कुरान में अल्लाह ताला चाहता तो उम्मे मूसा की जगह नाम लिख देता। मगर उसके लिए इल्म की इंतहा क्या थी, इल्म की मेराज क्या थी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम किसको आता है। बड़े बड़े हजरत लोग। तो अल्लाह के वास्ते इन चीजों में ना पड़े। जितना काम है वो सवाल करें और अमल के लिए सवाल करें।
کہ तुमसे पहली कौमें हलाक हो गई। सवाल ज्यादा करते थे और नबियों के साथ इख्तलाफ करते थे। मैं तुम्हें जो हुक्म दे दूं इस्तिताअत के ऊपर उस पर अमल किया करो, और जिससे मना करूं उससे रुक जाओ। क्या दीन खूबसूरत पैदा किया। हज का फर्ज बयान करते करते पूरी जिंदगी बयान कर गए कि अगर मैं तुम्हें हाँ कह देता हर साल फर्ज हो जाता। मुसलमानों अगर हर साल फर्ज हो जाता। अल्लाह ने हम पे बड़ी आसानियां की हैं। कभी मैं सोचता हूं अगर कुर्बानी बेटों की हो जाती, अपना अपना बेटा पकड़ो और ज़िबा करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो दुम्बा ज़िबा नहीं किया, वो तो अल्लाह ताला ने दिया है मेंढा। वो तो बेटे के गले पे छुरी चला रहे थे। हज हर साल हर किसी पे फर्ज हो जाता और अल्लाह ताला इस्तिताअत की बात ना करते कि चाहे पैदल जाओ, कर्जा लेके जाओ, तब भी करना है। बनता क्या। मगर अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, बड़ा ही करीम है। उसने साफ कहा जिस पे इस्तिताअत है वो कर ले, मगर इस्तिताअत के बावजूद ना करे। आगे मैं इस पे बात करूंगा। मुसलमानों, ये तो बुलावा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। ए इब्राहिम आम दावत दे हज की। घर तूने मेरा बना दिया है, ये बैतुल्लाह तूने बना दिया मेरा। अल्लाह इधर कोई बस्ती नहीं है, कोई लोग नहीं है, तूने अपना घर बना दिया। मेरा बेटा मेरे साथ शामिल हुआ है, हमने पत्थरों के साथ तेरा घर बनाया। अब क्या करें। यहां तो है कोई नहीं। वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, तुम हज की अजान दो, तुम हज की सदा लगाओ, तुम इज़्ने आम करो, हज का सदाए आम करो, सबको सदा दो हज की। यातू का रिजालम व अला कुल्लि ज़ामिरी यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। तुम देखोगे लोग पैदल यहां आएंगे, लोग दुबली पतली ऊंटनियों पे सवार होके यहां पे आएंगे, पैदल भी यहां पहुंचेंगे, सवार भी यहां पहुंचेंगे। हम सबको इस तरफ मोड़ देंगे। जाते कि नहीं। हम सुनते थे पहले लोग पैदल जाते थे काफले, ऊंटों पे लोग हज पे जाते थे। बहावलपुर में बहावलपुर के नवाब की गाड़ी खड़ी है जो उसने हज के लिए बनाई थी। बहरी जहाजों पे लोग हज पे जाते हैं, जहाजों पे जो जिस तरह जा सकता है। कहा इब्राहिम आप हज की सदा दें, हम सवार भी इधर लाएंगे, पैदल भी इधर आएंगे, सेहतमंद सवारियों पे आएंगे, दुबली पिचकी ऊंटनियों पे बैठे गरीब लोग भी यहां पे आएंगे। आप आवाज दें। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा गूंज रही है और उस पे लब्बैक कहने वाले पहुंच रहे। माशाअल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला बार बार हज उम्रे की तौफीक दे, बार बार हज उम्रे की तौफीक दे, बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। जो बार बार हज उम्रा करता है। यहां तो कहते नहीं एक दफा कर लिया अब क्यों करें, का बार बार फकर को, भूख को और गुनाहों को इस तरह खत्म कर देता उसका हज और उम्रा, जिस तरह भट्टी जंग और मैल को खत्म कर देती है। लोहा भट्टी में डालें तो मैल अलग हो जाती है, जंग अलग हो जाता है और खरा लोहा अलग हो जाता है। का यूं मैल खत्म होती है, जंग खत्म होता है। जो बार बार बैतुल्लाह का हज उम्रा करता है उसके गुनाह भी यूं मिटते हैं और उसकी भूख और फकर भी। सारे रोकते फकर को। कब हज से फकर पैदा नहीं होगा, हज से फकर खत्म होगा। उम्रे से फकर पैदा नहीं होगा, उम्रे से फकर और भूख खत्म होगी। यह खर्चा तुम्हें कंगाल नहीं करेगा, यह खर्चा तुम्हें मालदार करेगा। जिसको यह समझ आ गई कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। और जी मैं बजट बना रहा हूं, अभी मेरी कैलकुलेशन में नहीं आ रहा, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरा कारोबार यूं। अल्लाह के नबी कहते हैं तू ये कारोबार तो कर, तू हज उम्रा शुरू कर, देख तुझे रोटी भी मिलेगी, तेरे गुनाह भी माफ होंगे। फरमाया
या अल्लाह तू हमें तौफीक दे, तेरा हज करें, तेरे घर के उम्रे करें। फरमाया एक उम्रा गुज़श्ता उम्रे तक के दरमियान के ज़माने के गुनाहों का कफ़ारा है। जिस तरह रमज़ान तक के गुनाहों का कफ़ारा है, नमाज तक के गुनाहों का कफ़ारा है, इसी तरह ये उम्रा क्या है? एक उम्रा गुज़श्ता उम्रे तक जितने दरमियान में गुनाह हुए इसका कफ़ारा है। आगे हज बयान कर दिया का हज मबरूर, जो सुन्नत के मुताबिक किया जाए, जो परहेजगारी के मुताबिक किया जाए, जो तरीके सलीके के साथ किया जाए, हज मबरूर, इसका सिला तो सिवाय जन्नत के, सुभान अल्लाह, जाता हज पे है, पहुंचता जन्नत में है। का हज मबरूर का बदला तो सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं है। चंद ठीकरियां, चंद रुपए, चंद सिक्के खर्च करेगा और सफर जन्नत का हज मबरूर का बदल तो जन्नत के सिवा कुछ नहीं। अमर इब्नुल आस कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ और मैंने अर्ज किया कि आप अपना दायां हाथ मेरे सामने करें, मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूं। इस्लाम पे बैत होती थी। आप अपना दायां हाथ आगे कीजिए, मैं अपने बैत करना चाहता हूं आपके ऊपर। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ आगे किया, मैंने भी अपना हाथ आपके हाथ के ऊपर दायां रखा, फिर मैंने हाथ खींच लिया, अपना हाथ खींच लिया आपके हाथ से। आपने फरमाया अमर तुझे क्या हुआ कि तू इस्लाम पे बैत कर रहा था और बैत के दौरान तूने हाथ पीछे खींचा, तुझे क्या हुआ? का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शर्त है, मेरी शर्त है, बैत शर्त के साथ करूंगा, मेरी शर्त है। आपने फरमाया बता। या अल्लाह, हम दुनिया के लोग दुनिया ही में रह गए, वो मुसलमान हो रहे हैं और फिक्र किस बात की लगी? कहते मगफिरत, गुनाहों की बख्शिश। मैं मुसलमान होता हूं मगर मेरी शर्त तो सुन ले कि मुझे मगफिरत चाहिए, मुझे मगफिरत चाहिए, मुझे गुनाहों की बख्शिश चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे अमर क्या तू नहीं जानता, इस्लाम का ले आना, इस्लाम का कबूल करना गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह के लिए हिजरत करना गुनाहों को मिटा देता है और अल्लाह की रजा के लिए हज करना गुनाहों को मिटा देता है। तीन बातें बोली कि इस्लाम का कबूल करना गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह के लिए हज करना गुनाहों को। कि तू बैत से हाथ खींचता है, तू इस्लाम लाएगा तेरे गुनाह मिट जाएंगे, तू हिजरत करेगा तेरे गुनाह मिटेंगे, तू हज को जाएगा तो तेरे गुनाह मिटेंगे। फरमाया, कुरान पहले सुना देता हूं, अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने मालूम है, हज का ihram कब बांधा जाएगा? ज़ुल्क़ादा में, ज़िलहज्जा में और मुहर्रम वापसी के। ये 3 महीने हज के हैं। हुर्मत वाले महीने 4 हैं और हुर्मत वाले महीनों की भी बुनियादी वजह यह थी कि हज का सफर होगा, कोई किसी से जंग नहीं करेगा, कोई किसी से लड़ेगा नहीं। हज को महफूज बनाने के लिए मुशरिकीन मक्का ने भी वो महीने मुकर्रर कर दिए थे जिसमें जंग नहीं होगी। का अल हज अशहुरुम मालूमात, तुम्हें हज के महीने मालूम है? जो हज की नियत करे वो सिर्फ पैसे ना जमा करे। यहां किसी को तकवे का गम नहीं है, लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, बेहुदा बातें नहीं करनी, गुनाह नहीं करने। जी खाना कैसे होगा? बूफे लगा होगा, चाइनीज खाना मिलेगा या देसी मिलेगा? कितने टाइम खाना मिलेगा?
लग्जरी गाड़ियां होगी हमारी, होटल कितने मीटर पे होगा, सारे हज की मत मार दी इन चीजों ने। हज इबादत है कि मादियत है? किसी का कारोबार ना चले तो उसे कौन सा कारोबार करा दे? हज उम्रे का। हज इबादत से निकल के कारोबार बन चुका है। कोई नहीं कहता कि हज के मनासिक सीखो, हज पे जाओ तो सीख के जाओ। कोई ये नहीं बताता कि अरफात में क्या करना है, मिना में क्या करना है, मुदलिफा में क्या करना है। इल्ला माशाअल्लाह मैंने हज पे देखा, बाबा हमारे खैमे में कहे ए मेरे पुत्र ने एने मैनू इत्थे घलाता है, जे किला पैली खरीद लेंदा इन्ने पैसों दी किन्ना फायदा, एने टक्करा मारना फिरना, मैनू पता तो है कोई नहीं, कुछ नहीं पता कहां क्या दुआ पढ़नी है, तवाफ क्या है, उमरा क्या है, सई क्या है, सीखते कोई नहीं। का फमन फरदा फीहिन्नल हज, जो हज की नियत करे, फिर वो ये गम ना करे कि बिल्डिंग जो है जी वो मक्का टावर होगी या शिरका मक्का होगी, दारुत तौहीद में रहूंगा या इब्राहिम खलील पे रहूंगा। इसी में सारा हज गवा देते हैं, सारा हज इसी में। होटल, खाना, मिना में मकतब कौन सा होगा, जमरात से कितनी दूर होगा, बस कौन सी मिलेगी, एयरलाइन कौन सी मिलेगी। अल्लाह ताला कहता है ये मसले नहीं है। मसला यह है कि फला रफसा वला फुसूका वला जिदाल, तू बेहुदा फहाशी की बातें नहीं करेगा, तू गुनाह नहीं करेगा, तू झगड़े नहीं करेगा। वमा तफ़अलू मिन खैरी यअलमुहुल्लाह, और तुम जो नेकी करोगे सब अल्लाह को पता है। वतज़व्वदू, ज़ादे राह जमा कर, हज का सामान जमा कर। ये यहां से जाते भी दुनिया का सामान इकट्ठा करते हैं और वहां से आते भी चाइना का सामान इकट्ठा करते हैं। हरम में कम मिलेंगे और बाजारों में, और घड़ियां यहां भी मिलती हैं, टोपियां यहां भी मिलती हैं, जायनमाज यहां भी मिलते हैं, कपड़े, सूट, ब्रीफ के सब यहां मिलते हैं। जो सोना मक्के मदीने की मार्केटों में मिलता है वो पाकिस्तान की मार्केटों में भी मिलता है। बाजार भरे, हरम में कम लोग। का तू ज्यादा राह जमा कर, तुझे होटलों की पड़ी है, तुझे वहां के रहने की पड़ी है, खाने की पड़ी, अल्लाह ज़ादे राह क्या होता है? फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? परहेजगारी से सफर करना, गुनाह से बचना, मेरा खौफ इख्तियार करना। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और साहिब दानिश, अकल वाले, समझ वाले, होश वाले, वत्तक़ून, मेरी परहेजगारी ना छोड़ना। ये हज के आदाब है। तकवे का सफर होगा, हलाल पैसे के साथ होगा, हराम के साथ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने हज किया अल्लाह की रजा के लिए, कोई बेहुदा बात नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। जिस दिन वो लौटेगा उसका दिन वो इस तरह का दिन होगा जिस तरह उसके मां ने आज ही उसको जना है, उसके ऊपर गुनाह कोई नहीं। पहले क्या फरमा दिया? गुनाहों को, फकर को जला देता है, ये जन्नत में ले जाता है। यहां क्या फरमाया? जिसने हज किया अल्लाह के लिए, किसी के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, सेल्फियां बनाने के लिए नहीं, वीडियो बनवाने के लिए नहीं, हरम को बैकग्राउंड में लाके तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं, उसका हज अल्लाह के लिए। वो दुनिया को नहीं बताता मैं हज पे आया हूं, वो अल्लाह को कहता है कि मैं हज पे आया हूं। उसके स्टेटस पे हज नहीं लिखा होता, उसके नामा अमाल में हज लिखा होता है। वतज़व्वदू, ज़ादे राह जमा कर, फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा। अल्लाह ज़ादे राह होता क्या है? तक़वा का कारोबार भी कर लेना। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, ये अपने रब का फजल तलाश कर लेना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जब तुम अरफात से लौटो बस गुरु, और करना वहां क्या? अल्लाह का जिक्र करना। बस कुरुल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, गप्पे बातें, टीवी चैनल, इसमें ना हज लगा देना।
जब हज में बैठो तो अल्लाह का जिक्र करना, वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, जिस तरह तुम्हें अल्लाह को याद करने का हुक्म दिया गया उस तरह करना। वज़्कुरुल्लाह इंदा मशअरिल हराम, मुज़दलिफा में बैठ के क्या करना, अल्लाह का जिक्र करना। तो मुसलमानों, ये बड़ी कीमती चीजें, हज की बड़ी कीमती चीजें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कमजोर आदमी आया, ज़ईफ आदमी आया। वहां तो हज जिहाद बड़ी चीज थी। आपने फरमाया, आके कहने लगा अपनी कमजोरी की, मैं ज़ईफ हूं, कमजोर हूं। आपने फरमाया तू अपने आप को तकलीफ में ना डाल, तू हज कर लेना, तेरा जिहाद हज है। कमजोरों का जिहाद क्या है? ज़ईफों का। अम्मा जी आशा कहने लगी रदी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जिहाद के जैसा अफजल कोई अमल नहीं। उस माशरे में मालूम था जिहाद दहशतगर्दी नहीं है, जिहाद जुर्म नहीं है। उस माशरे को मालूम था कि अफजल तरीन अमल क्या है? जिहाद। फरमाया हम जिहाद ना करें औरतें? कहा तुम हज कर लिया करो। औरतों का जिहाद क्या है? हज मबरूर। ये हज औरतों का जिहाद है। अल्लाह अकबर। ये हाजी होता क्या? मुजाहिद और हाजी इकट्ठे बोल दिए अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रस्ते का गाजी और हज करने वाला, ये अल्लाह के मेहमान हैं। इनको अल्लाह ने बुलाया और इन्होंने तामील की। जब ये अल्लाह से मांगते तो अल्लाह ताला इनको अता फरमाता है, इनकी दुआ रद्द नहीं जाती। हमारे बड़े लोग जी मैं फलां काम ना कर लूं, हमारे कई बंदे मत देते हैं, ए तुसी उमरा ना करो, तुसी इत्थे पैसे खर्च कर दियो, तुसी उमरा ना करो, तुसी फलाना सदका कर दियो, तुसी उमरा ना करो, तुसी चंदा दे दो, ताडे उमरे तो बेहतर है कि जरा चंदा मिन्नू दोगे ना, ये उमरे तो अफजल है। ये वो सब लोग हैं जो हदीसें नहीं पढ़ते, ये वो सब लोग हैं जो दीन नहीं पढ़ते, जो उमरे के पैसे किसी और जगह लगवाते हैं। इनको दीन का इल्म नहीं है। बैठे बिठाए फतवा दे देंगे, ए जी तुसी मिन्नू पैसे दे दो, मैं रसीद काट देंगे ना, तानू उमरे तो बहुत सवाब मिलना है। उम्मे माकिल कहती रदी अल्लाह अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले और फरमाने लगे कि तुमने हमारे साथ हज क्यों नहीं किया? कहने लगी हमारे पास तो एक ही ऊंट था, हमारे पास 2 ऊंट थे, एक मेरा खामद हज पे ले गया, एक पे हम पानी लाते थे, तो मैं तो मजबूरी में नहीं जा सकी। फरमाने लगे तो रमजान का उमरा कर लेना, ये हज के बराबर है। दूसरी औरत का सुनाओ, और इसी में कहती हैं कि मेरे खामद ने तो ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे दिया। फरमाने लगे क्या तुमने हज को अल्लाह का रास्ता नहीं समझा? वो जो अल्लाह के रास्ते में ऊंट दे गया कि मैंने हज नहीं पे नहीं जाना, अल्लाह के रास्ते में ऊंट दे दिया, क्या उसको मालूम नहीं कि हज क्या है? अल्लाह का रास्ता है। अगली बात हदीस सुनाता हूं, इससे ज्यादा वजाहत की। एक औरत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा और सलाम भेजा कि मैं हज करना चाहती हूं। जो ऊंट हमारे घर में था वो मेरे मर्द ने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, उसने फी सबीलिल्लाह उसको वक्फ कर दिया, मेरे पास ऊंट नहीं है। आपने फरमाया क्या ही बेहतर था कि तुम उस ऊंट के ऊपर क्या करती? हज। क्या तुमने अल्लाह का रास्ता नहीं समझा? हज को कहीं और देने को तुमने समझा, अल्लाह का रास्ता तुमने हज नहीं समझा। फिर उसने कहा कि मुझे बताएं कि मैं आपके साथ हज में किस तरह शामिल हो सकती हूं, अब तो रह गई। आपने फरमाया रमजान में उमरा कर लेना, वो इस तरह जिस तरह मेरे साथ हज करने के बराबर, ऐसे ही होगा जिस तरह मेरे साथ हज करना। आज भी जो रमजान का उमरा करते हैं, इस तरह जिस तरह उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। हज को समझना, इसकी फर्जियत को समझना, इसकी अहमियत को समझना, इसकी वाजिबियत को जानना मुसलमानों के लिए लाजिम है। और सिर्फ जानना नहीं, इसको सीखना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना।
इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह हमें तो क्या बना ले, अपना फरमाबरदार। क्या दुआ की है अल्लाह, तू हमें अपना क्या बना ले, फरमाबरदार। अपनी बात मानने लगा। व मिन दुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, ऐ अल्लाह मेरी औलाद में से एक उम्मत देना जो तेरी फरमाबरदार हो। व अरिना मनासिकना, और हमें क्या सिखा दे, अपनी इबादत का तरीका। इसमें तर्जुमा करने वाले बहुत सारों ने लिखा व अरिना मनासिकना से क्या मुराद है, ऐ अल्लाह हमें हज का तरीका सिखा दे, ऐ अल्लाह हमें हज का तरीका सिखा दे। व अरिना मनासिकना, ऐ अल्लाह हमें बता दे, हमें दिखा दे, हमें सिखा दे कि हज करते किस तरह। व तुब अलैना, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह भी माफ कर दे। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ऐ अल्लाह तू बड़ा ही मेहरबान है, ऐ अल्लाह तू बड़ा ही माफ करने वाला है, तू बड़ा ही गुनाहों को बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह तू हमें माफ भी कर दे, हम पे रहम भी कर दे। ऐ अल्लाह मुझे फरमाबरदार बना, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत में, मेरी औलाद में वो उम्मत दे, वो कौम दे जो तेरी फरमाबरदार हो, और हमें हज का तरीका सिखा दे। हज को सीखना, माशाल्लाह यहाँ कोर्सेज होते हैं हज के, इसके तो काफी वक्त चाहिए। अगर मैं आपको इसकी बात सुनाऊं कि हज कितना बड़ा फरीजा है। मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह की दो बातें आपको सिर्फ सुनाना चाहता हूं अभी। हजरत उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि मैं उम्माल मुकर्रर करूं। ये जिस तरह निगरान होते ना, आमिल मुकर्रर करते थे इलाकों में, मैं उम्माल मुकर्रर करूं जो जाके जायजा लें कि इस्तिताअत के बावजूद जो लोग हज नहीं करते मैं उनके ऊपर जिजिया लगा दूं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। सैयदना उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं ये चाहता हूं कि मैं आमिल मुकर्रर करूं, मैं निगरान उम्माल मुकर्रर करूं जो जाके जायजा ले इलाकों में जो इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता, हम उससे फिर जिजिया वसूल करना शुरू कर दें क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। एक अगली बात कहते हैं, 3 दफा सैयदना उमर ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया जो इस्तिताअत के बावजूद हज का इस्तिताअत थी उसके पास, उसने हज नहीं किया और मर गया, वो मरे चाहे ईसाई होके चाहे यहूदी होके, वो इस्लाम की मौत नहीं मरा। इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता, उसकी मर्जी है कि वो यहूदी होकर मरना चाहता है, ईसाई होकर मरना चाहता है, वो इस्लाम की मौत नहीं मरा। और आगे कहते हैं मैं 6 या 7 गज़वात में शरीक हो जाऊं, इससे ज्यादा पसंद करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे हज की तौफीक दे और मैं वहां पहुंच जाऊं। ये बड़ी तरबियत की चीज है। तरबियत के बारे में उलमा कराम का एक नजरिया है और जबरदस्त है। तरबियत घर से निकले बगैर नहीं होती। नमाज बंदा घर में पढ़ता है, मोहल्ले में पढ़ता है, रोजे बंदा अपने इलाके में रखता है। जिंदगी तरबियत के लिए माहौल चाहिए और हज से बेहतर कोई माहौल नहीं। मस्जिद में आते हैं, कोई महंगा कपड़ा पहन लेता है, कोई सस्ता। अल्लाह ताला ने तरबियत करवानी। बादशाह ने भी वही कपड़ा पहनना और फकीर ने भी वही कपड़ा पहनना, कोई सिला कपड़ा नहीं पहनना। जो गरीबों का जूता है कैंची जुत्ती, ना मोजा पहन सकता है, ना बूट पहन सकता है, ना कोई पेशावरी जूता पहन सकता है, ना कोई खुस्से पंजाब के पहन सकता है, कुछ नहीं पहनना। छोटा सा जूता पहनना है जो उसके पांव को ढके ना, और कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। एक रंग के, एक तरह के। कौन बादशाह? पीछे हो जाओ, अब अल्लाह की बादशाहत में जा रहे हो। खत्म करो तुम्हारा क्या प्रोटोकॉल है, सब एक हो जाओ, सब नंगे सर। एक बालिश रुमाल नहीं रख सकता, कोई टोपी अपने सर पे नहीं रख सकता, कोई सिली चीज अपने बदन पे रख नहीं सकता। 2 चादरें, एक कमर पे बांधी हुई है, एक ऊपर ली हुई। सुभान अल्लाह, क्या मंजर है। और जैसे ही मीकात आ गया, सबका एक तराना, पूरी दुनिया में एक लफ्ज बोला जाता है, लब्बैक
अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं तुझसे भागा ही नहीं। पता है जब हाजिरी लग रही होती है तो कितने बंदे अटेंटिव होते हैं, कितने होशियार होते हैं, कहीं मेरी एब्सेंट ना लग जाए, गैर हाजिरी ना, खामोशी होती क्लास में। कॉलेज वाले कहते हैं यस, और मदरसे वाले हम जैसे क्या कहते हैं, लब्बैक। हाजिर हूं, मैं गैर हाजिर नहीं हूं। उम्मत का एक तबका पुकार रहा होता लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हो गया, अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मैं फिर क्या कहता हूं, मैं हाजिर हूं, ला शरीक लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक ही नहीं, सारी तारीफें तेरे लिए, सारी नेमतें तेरे लिए, अल्लाह तेरा शुक्र मुझ पे वाजिब। ये पढ़ते जाते हैं, एक ही लिबास, हरम में पहुंच जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं उस घर में। और सुभान अल्लाह क्या मंजर है। मैं एक हदीस आज रस्ते में पढ़ रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में आए, हजर अस्वद का इस्तेलाम करना था, छड़ी से किया और फिर छड़ी को चूम लिया, छड़ी को किया और छड़ी को चूम लिया। कहते मुझे ये पसंद नहीं था कि मेरे लिए किसी को हटाया जाए, मेरे लिए किसी को मारा जाए, कि मैं हजर अस्वद तक पहुंचूं और लोगों को पीछे हटा, पीछे हो जाओ, रास्ता दो, रास्ता दो, धक्के देना का मुझे अपने लिए पसंद नहीं कि मेरे लिए कोई रास्ता बनाए। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी वजह से किसी को मारा जाए कि पीछे हो। हमारे तो है ही दस्तूर ये कि रास्ते बनाए, हटो बचो, हटो बचो। कहा नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। उतरे नहीं है, छड़ी कहते टेढ़े मुंह की छड़ी थी, वो हजर अस्वद को लगाई, उसी को चूम लिया, किसी को तंग नहीं करना। और क्या अतात है इस हज में, कुछ चीजें बड़ी सीखने वाली हैं। हरम में 1 लाख नमाजों का सवाब है और मिना हदूद हरम में नहीं है। लाखों रुपए खर्च करके गया है, लाखों रुपया खर्च करके गया है, 1 लाख की नमाज छोड़नी है, जहां कहा गया वहां पढ़नी है। मिना चंद किलोमीटर के ऊपर है, मगर मक्के वाला भी क्या करेगा, जमा भी करेगा और कसर भी करेगा। जिसकी अकल खत्म हो जाएगी उसको ईमान मिलेगा, जो अकल के घोड़े दौड़ाएगा उसको कुछ नहीं मिलना। कहे ना कि अल्लाह ताला हम तो बैतुल्लाह के पैसे खर्च करके आए और तूने 8 जिलहज्जा को हमें यहां से निकाल दिया। थोड़ा सा सूरज निकला, जोहर से पहले पहले मिना आ गए, और अभी तो आए हैं, अल्लाह हम तो नमाजें पढ़ने के लिए आए, तूने हमारी 4 भी 2 कर दी। अतात ही अतात है। होटल छोड़ के खैमों में आके बैठो, अगली सवेर हुई है, मिना भी नहीं टिकना, चलो अरफात में पहुंचो। अरफात में पहुंच के खुतबा सुन लिया, जाओ निकल जाओ, दुआ करो। लाखों लोग हैं अरफात के मैदान में फैले और दुआएं कर रहे हैं। मगरिब का वक्त हो गया, अल्लाह नमाज पढ़ ले। कहा तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी, मेरे नबी की शरीयत चलेगी। मगरिब का वक्त होगा अरफात में, नमाज जाके कहां पढ़नी है, मुदलफा में। जिसको अतात आती वो हज करता है, जो चूंके चुनाचे करेगा ना उसको हज की समझ आएगी ना उसको इस्लाम की समझ आएगी। या अल्लाह मगरिब का वक्त है, हम तो इबादत के लिए आए, अभी तो इबादत का मजा आया। अल्लाह हम हज में आए हैं, जोहर की 2 रकत, असर की 2 रकत, 1 अजान 2 अकामत, 2 रकत नमाज है, जोहर की असर की, खुतबा हज है, हज हो गया। और सबसे बड़ा रुकन हज का क्या है, वकूफ अरफात। अरफात का वकूफ 9 जिलहज्जा। या अल्लाह सारा हज नहीं है, कहा नहीं, ये 9 जिलहज्जा का वकूफ, यहां पे आके क़याम कर लेना, यहां पे आके ठहर लेना, इस अरफात के मैदान में तेरे कदम लग जाए। नमरा की वादी, अरफात की, मगरिब का वक्त, चलो कहां थके, पहले 8 को आए हैं, अब 9 को सारा दिन काम किया है, अब क्या सामने खैमे, अल्लाह जरा खैमे में जाके सो जाए? नहीं, इन कंकरियों पे सोना है।
कोई बिस्तर नहीं, कोई तकिया नहीं, कुछ नहीं, सब इन कंकरियों पे सो जाओ। खुले मैदान में बादशाह है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई बंदोबस्त नहीं। जिसका 7 स्टार होटल है, जिसका 5 स्टार होटल है, अल्लाह ताला कहता मैंने तरबियत के लिए बुलाया। आज कोई अपने होटल में नहीं जाएगा, कोई अपने खैमे में नहीं सोएगा, कोई अपने महल का रुख नहीं करेगा, इस मैदान में संग्रेजों पे सोना है। अल्लाह इबादत है, आज तहज्जुद पढ़े का नहीं, हज का दिन है और तहज्जुद ना अल्लाह के नबी ने पढ़ी मुदल्फा की रात में और कहा इस रात तहज्जुद नहीं पढ़नी। थका आया है ना, थोड़ा आराम कर, उठ, फजर पढ़ी, दुआएं की, चल पढ़, 8 को मुश्किल में, 9 में मुश्किल में, 10, ये उससे बड़ा काम है। चल अपनी कुर्बानी कर उस मैदान में, एहराम खोल, अपने सर के बाल कटा और फौरन कहां पहुंच, उसी हाल में बैतुल्लाह में आ, अपना तवाफ कर, तवाफ ज़ियारा कर, इसके बगैर तेरा हज नहीं होना। और सफा मरवा की सई कर, 35 लाख है या 50 लाख है, उसी वक्त ये अमल करना है। और जमरात को कंकर, अल्लाह सबको मार दूं, कहा नहीं, जिस दिन हम जो कहेंगे आज एक को मारने, 3 को नहीं मारने। जिसको अतात, जिसके दिमाग में अतात आ गई उसको हज मिलेगा। अकली घोड़े दौड़ाने वाले, लॉजिक दलील पे चलने वाले, इनको कुछ नहीं मिलेगा। हो गया, अब कपड़े पहन लिए, हज जिसका मुकम्मल हो गया। तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसकी तफसील करेंगे। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है, हज को फरीजा मानना है। जो इस साल जा रहे हैं अल्लाह ताला तौफीक दे, जो नहीं जा पा रहे इसको पेंडिंग में नहीं डालना, इसको पाइपलाइन में नहीं रखना, इसको कर लेंगे हो जाएगा ये नहीं करना। जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे पहली फुर्सत में इस फरीजे को अदा करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।